रिकी टिकी तवी नाम की स्टोरी आज हम देखने जा रहे हैं, हिंदी में एनिमेटेड, एक्सप्लेन और इंग्लिश में भी। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Rikki Tikki Tavi was a mongoose. One day, a flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. When he woke up, he was lying under the hot sun in the middle of a garden path, and a small boy was saying, "Here's a dead mongoose. Let's have a funeral." "No," said his mother. "Let's take him in and dry him. Maybe he isn't dead." So they wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire. Then he opened his eyes, ran all round the dining table, scratched himself, and jumped on the small boy's shoulder. "Don't be frightened, Teddy," said his father. "That's his way of making friends." The next morning, Rikki Tikki went out into the garden. He heard Darzee, the tailor bird, and his wife crying. "What is the matter?" asked Rikki Tikki. "We are very sad," said Darzee. "One of our babies fell out of the nest yesterday and Nag ate him." "Who is Nag?" asked Rikki Tikki. Suddenly, from the thick grass at the foot of the bush, there came a low hiss. Inch by inch out of the grass rose the head and spread hood of Nag, the big black cobra. "Who is Nag?" he said. "I am Nag. Look and be afraid." "Behind you! Look behind you!" sang Darzee suddenly. Rikki Tikki jumped up in the air as high as he could go. Just under him whizzed by Nagina, Nag's wife. As they missed their stroke, Nag and Nagina disappeared into the grass. Rikki Tikki did not follow them. He sat down on the gravel path near the house and began to think. That night, as soon as Teddy was asleep, Rikki Tikki went off for a walk round the house. The house was quiet, and he heard Nag and Nagina whispering together. "When the house is emptied of people," said Nagina to her husband, "he will have to go away. Go in quietly and bite the big man first. Then we will hunt for Rikki Tikki together." Rikki Tikki was very angry to hear this. Then he saw Nag's head coming in through the drain. He was frightened as he saw the big cobra. Nag quietly waited at the bottom of the water jar for the right opportunity, and Rikki Tikki stayed still. After an hour, Rikki Tikki began to move slowly towards the jar. Nag was asleep. Rikki Tikki decided, "I must bite the head, and once I do, I must not let go." Then Rikki Tikki jumped and caught Nag's head in between his teeth. Immediately he was battered to and fro and up and down and around in great circles. He held on to Nag even as his body hit the floor and banged against the bathtub. As he held on to the snake's head, he closed his jaws tighter and tighter. He was dizzy, aching, and felt shaken to pieces when he heard something like a thunderclap just behind him. The noise had woken Teddy's father. He had come running with his gun and had shot Nag just behind the hood. Rikki Tikki held on tightly with his eyes shut. He was sure that he was dead. Teddy's father picked him up and said to his wife, "It's the mongoose, Alice. The little chap has saved our lives."
चलिए अब इसी स्टोरी को हम हिंदी में भी सुन लेते हैं। रिकी टिकी टवी ये एक नेवले का नाम है। ये देखिए ये नेवला है जिसका नाम रिकी टिकी टवी। आज हम उसी की स्टोरी देखने वाले हैं। एक दिन क्या हुआ था, नदी को बाढ़ आ गई थी और बाढ़ के कारण इसका जो घोंसला मतलब ये बिल में रहता था वो बिल के साथ ही वो टूट गया और वो नदी के पानी में बहते बहते रोड के साइड में आके वो गिर गया। आप देख सकते हैं पूरा पानी से लदा बदा हुआ है। उसकी आँखों में पानी, नाक में पानी, कान में ना कि पूरा पानी ही पानी उसके शरीर में चला गया था और धूप में वो था। तभी एक लड़के ने उसे देखा और वो बोला कि देखो मम्मी ये नेवला मर गया है, अब हम एक काम करते हैं गड्ढा बनाते हैं उसे दफना देते हैं। तो मम्मी बोली अरे नहीं, शायद से ये अपने आप को सुखाने के लिए भी ऐसे पड़ा है और हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मरा हुआ है, लेकिन ये जिंदा भी हो सकता है। तभी उन्होंने इसे कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा लपेट दिया और एक छोटे से लैंप के थोड़े से जो गर्मी रहती है उसके वहाँ उसको रख दिया। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे थोड़ा सा गर्मी उसे महसूस हुआ वैसे वो थोड़ा भागने लगा घर के आजू बाजू में सभी जगह पे। उसने अपने आप को भी और जो बच्चा है उसको भी तुरंत वो फ्रेंड के जैसे उसके शोल्डर पे आके बैठ गया। तब पापा ने उसे बोला कि टेडी देखो घबराओ मत, ये वो आपसे ना फ्रेंडशिप करना चाहता है और फ्रेंडशिप का ये उसका वे होगा। दूसरे ही मॉर्निंग में नेवला जो है रिकी टिकी ये घूमने के लिए गार्डन में निकला था। जब वो गार्डन में यहाँ वहाँ घूम रहा था तभी उसे एक बर्ड जो डाजी नाम का बर्ड होता है, टेलर बर्ड, और उसकी वाइफ जो है ये रोते हुए दिख गए। वो रो रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। अब इसको बहुत जिज्ञासा कि ये क्यों रो रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं। रिकी टिकी ने उनको पूछा क्या मैटर है करके। तभी वो बर्ड बताने लगा कि हम बहुत दुखी है। तो वो जो बर्ड है मतलब जेंट्स जो है, फीमेल नहीं, हमारा एक जो बेबी था ना वो इस नेस्ट में कल तक था और पता नहीं वो नाग है वो उसे खा गया। तो रिकी टिकी ने पूछा कि नाग, कौन सा नाग? तभी उसे जो मोटी मोटी घास है वहाँ से उसे थोड़ा सा हुश हुश जो सांप का आवाज़ निकलता है वो उसे सुनाई दिया और उसे पता चला कि वहाँ पे कोई तो सांप रहता है और उसी ने इसका बच्चा खा लिया है, उसे पता चल गया था। थोड़ा थोड़ा इंच जो ग्रीन घास है वहाँ से वो अपना हेड निकालते हुए, अरे वो तो बहुत बड़ा बैक कोबरा था। हु इज नाग? वही बोला। ओ एम नाग, देखो मेरे तरफ देखो, तुम्हें डर ज़रूर लगेगा। वो नाग बोला। बिहाइंड यू, तो पंछी नेवले को बताता है कि तुम्हारे पीछे देखो। अरे पीछे तो देखो। रिकी ने पीछे देखने के लिए जंप जोर से किया और वो पीछे जल्दी से देखने लग गया। ओहो हो, तो उसके तुरंत पीछे नाग भी है और नागिन भी है। ओहो हो, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे है। नाग और नागिन जैसे नेवले को देखते हैं तुरंत ही वो जल्दी से कहीं घास में दूर तक वो चले जाते हैं। अब रिकी को लगता है, रिकी टिकी को, ये कहाँ से आए कहाँ से गए, तो वो उनकी प्लेस जो है वो देखना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक प्लेस पे वो बैठ गया। अब उसी रात को जब वो बच्चा है टेडी वो सोया हुआ था, बहुत गहरी नींद में सोया था, तब रिकी टिकी जो है वो वॉक करने के लिए घर से निकला और उसे ना घर में थोड़ा चुपचाप सा घर, वहीं पे उसे ना थोड़ा सा आवाज़ ऐसे आ रहा था कि जैसे नाग नागिन जो है वो फुसुर फुसुर कर रहे हैं करके, दोनों भी एक दूसरे के साथ। और वो बोल रहे थे कि ये घर पता नहीं कब ये पीपल छोड़ के चले जाएंगे और ये फिर से खाली हो जाएगा, तो हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों वहाँ पे रहने के लिए चले जाएंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और हम एक काम करते हैं, वो जो आदमी है ना उसे हम काट लेते हैं और फिर वो जो रिकी टिकी है उसकी भी हम ना शिकार कर लेंगे। अब रिकी टिकी को ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी उसने देखा कि नाग जो है ना वो अपना सर एक छोटे से होल में से निकाल के
वो आने की कोशिश कर रहा था। अभी ये बहुत बड़ा कोबरा है, तो थोड़ा डरने की बात भी थी क्योंकि वो दोनों एक साथ आ रहे वाले थे। अब ये नाग जो है ना, ये जल्दी जल्दी आते ही जो टब होता है नहाने का, उसके बॉटम में था। और अभी रिकी टिकी ना ऐसे दूर से ही एक जगह से देख रहा था। जब वो रिकी टिकी ने देखा कि नाग जो है वो गहरी नींद में अब सो गया है एक प्लेस पे, वो देखिए आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तभी रिकी टिकी ने अब सोचा कि ये मुझे काटने के पहले मैं ही इसे जाता हूँ और मैं इसे काट लेता हूँ। हाँ, तो वो निकल पड़ा उसको काटने के लिए। जैसे ही उसने रिकी टिकी ने जंप करके जल्दी से जो नाग है उसके दिमाग को उसने जल्दी से जोर से काटा। नाग इधर उधर उसको फेंकने लग गया था, नीचे ऊपर गोल गोल घुमाने लग गया था। नाग को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो कुछ भी करके अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहता था वो नाग, इसके बॉडी को उसके बाकी के शरीर के अंदर लपेटना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकता था क्योंकि नेवले ने उसके सीधा सर के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और इसी के कारण वो अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा अभी उसको जो दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा ही होने लग गया था। वो अब उसका थोड़ा सा वीकनेस बढ़ने लगा था और उसे दर्द के कारण वो चिल्लाने कर्राने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो दर्द के कारण वो आवाज़ निकाल रहा था वो टेडी के पापा को पता चल गया और वो हाथ में बंदूक लेके ही वो जल्दी से वहाँ पे आ गए और उन्होंने नाग को गोली मार दिया। नाग को गोली मारने के बाद रिकी टिकी ने एक्चुअली बहुत टाइडली अपनी आंखें बंद करके रखी थी और उसे तो लग रहा था कि वो मर ही गया करके, वो खुद, क्योंकि वो बंदूक की आवाज़ से डर गया था ना। और तभी रिकी के ये जो टेडी के पापा है उन्होंने वाइफ भी आई थी और उसने बताया कि ये नेवला जो है ना, इसने आज पता है हम सबकी, हमारे बेटे की जान बचाई है। तो ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और ऐसे देखते रहिए।